یہ آپشنل چیز ہے, آپ کو اسے اڈاپٹ کرنا ہے اور اسے پھر مینیفیسٹ کرنا ہے, اسے ایکسپریس کرنا ہے. اور اگر ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے کوئی یہ خود کار آلہ کی طرح کام کرنے والی نہیں ہے. آمین. یہ خود کار آلے کی طرح کام نہیں کرے گی, بلکہ مجھے اور آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور پریکٹس کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا ہے. آمین جی. جب ہم کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, کہ جب منہ بنا کے ملیے تو پھر برا لگتا ہے نا. انہوں نے تو منہ بنایا ہوا سی, ہے نا, کتنا برا لگتا ہے. we don't like it کہ بھی لوگ جو ہے دیکھیں ہمارے پاس سے گزرے ہیں ایسے منہ بنا کے لنگ گئے, تو ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کا منہ بگڑا ہوا ہے, اترا ہوا ہے, تو we don't like it. تو خدا کی حضوری میں آ کے خدا پسند کرتا ساڑھے منہ لتے ہوں, کرتا پسند. بھائی میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں, تو اگر میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں, تو وہ نہیں چاہتا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے منہ اترے ہوں. آمین. شادمان ہو, خوش ہو. آمین. آئیے بولے ہاللویا, پھر بولے ہاللویا, پھر بولے گے ہاللویا. تھکنا نہیں ہے. آئیے اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. شادمانی سے خوشی سے کہ میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور میرا اور آپ کا باپ یہاں پر موجود ہے, اور وہ برکت دینے کے لیے موجود ہے. آمین. برکت دینے کے لیے موجود ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مذبح جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے برکت کا مقام ہے, مگر برکت اس کے لیے جو برکت کو قبول کرنا چاہتا ہے, اور جو اسے قبول کرنا نہیں چاہے گا, بلیو کریں, اس کے لیے نہیں ہے. اس لیے مذبح سے جو کچھ بھی آئے گا وہ میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا. آمین. آج بڑا خوبصورت دن ہے. ہمیشہ کی طرح یہ پھر سے کہتا چلا جاتا ہوں کہ خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں یہ جو دن ہے, اس کی حضوری میں رہنے والا دن ہے, یہ سب سے بہترین دن بنایا ہے. آمین. ہم پورا ویک کئی ایک کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, اپنی زندگی کی گہما گہمی میں مصروف ہیں, مگر کس قدر خوبصورت وقت ہے جو خدا کی حضوری میں گزارا ہے. آمین. مبارک ہے وہ جو خدا کی حضوری میں آتا ہے. Blessed is the one, مبارک ہے وہ جو خدا کی حضوری میں آتا ہے. اور خدا کی حضوری میں آ کر خدا کی حضوری کو اگر تجربہ نہ کریں تو پھر اس کی حضوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آمین. اگر بارش برس رہی ہے, امبریلا سر کے اوپر ہے تو بارش نہیں پڑے گی. اگر بارش برس رہی ہے, امبریلا نہیں ہے, تو فلی آپ کیا ہوں گے, بھیگیں گے, بارش کو انجوائے کریں گے. لائک وائز خدا کی حضوری جو ہے یہ میرے اور آپ کے ارد گرد برستی رہتی ہے. بٹ اگر میں پری آکیپائیڈ ہوں, مختلف آئیڈیاز میں, مختلف خیالوں میں, تو پھر مجھے کبھی برکت نہیں ملے گی. آمین. اگر آپ بھیگنا چاہتے ہیں پاک روح کی برکت سے, اگر پاک روح کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کیجئے خداوند کی حضوری میں, اور کہیے خدا میں تیار ہوں آج کی برکت کے لیے. آمین. آج کی برکت کے لیے. آج کا ہمارا مضمون ہے, اور اس ایمان کے ساتھ کہ ہم برکت پائیں گے. آمین. آج کا ہمارا مضمون ہے, اس سے بہترین کو نکالیے. بولیے گا, اس سے بہترین کو نکالیے. Getting the best out of it. اس میں سے بہترین کو نکالیے. مجھے اور آپ کو اس لائف میں بہترین چاہیے. ہم یہ جو اچھا ہے اس پر انحصار کرنے والے لوگ نہیں, ہم بہتر پر انحصار کرنے والے لوگ نہیں. ہمیں بہترین چاہیے. اگر آپ اچھے پہ اکتفا کر جائیں گے تو بہتر کا سفر نہیں کریں گے, اور اگر آپ بہتر پر اکتفا کر جائیں گے تو بہترین کا سفر نہیں کریں گے. اس لیے کیا ہے, اچھے سے سٹیپ لگائیے, آگے جائیے, بہتر اور بہتر سے بہترین کا. آپ اور میں مختلف طرح کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں, اور ان حالات میں سے اگر میں بہترین کو نکال پاؤں تو میرے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. آمین. آپ اور میں, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک چنوتی ہے, چیلنج ہے. آج کا مذبح اور آج کے مذبح کا پیغام جو ہے یہ ایک چیلنج ہے کہ میں اپنی لائف میں ہونے والے ہر معاملہ سے بہترین کی تلاش کروں. آمین. اپنی لائف میں ہونے والے
हर मामला में बेहतरीन की तलाश करूंगा। मुझे उसमें से बुराई नहीं ढूंढनी, मुझे उसमें से नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी, बल्कि मुझे उसमें से बेहतरीन ढूंढना है। और जब मैं बेहतरीन उसमें से निकालूंगा तो वो बेहतरीन मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कौम कबीले के लिए बरकतों का बाइस होगा। आमीन। हमने बड़ा मशहूर पैसेज सुना हुआ है, पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब। आइए जरा जल्दी से देखिए, मेरे साथ खोलिएगा पैदाइश की किताब जेनेसिस 32। Grab your Bible and turn with me to the book of Genesis chapter 32 verse number 29. पैदाइश 32वां बाब और उसकी 29वीं और अगर 26वीं आयत और 29वीं दोनों पढ़ दीजिएगा, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पूप फूट चली। उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पूप फट चुकी। याकूब ने कहा जब तक मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। 29 में आए। तब याकूब ने उसे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तो मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है, और उसने उसे बरकत दी। आमीन जी। याकूब ने उससे कहा कि तू मुझे अपना नाम बता दे। तो जो शख्स उस जगह पर मौजूद था जिससे वो गुफ्तो शनीद कर रहा था, उसने कहा कि तू मुझसे मेरा नाम क्यों पूछता है, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। बड़ा पॉपुलर पैसेज है, आप घर में जाइएगा इसे पढ़िएगा और आपको सारी स्टोरी जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। याकूब मर्दे खुदा है और मेरे और आपके लिए मशले राह है। उसकी जिंदगी का एक एक मामला, उसकी जिंदगी का एक एक कदम जो है मेरे और आपके लिए दर्स है, एक सबक है। अगर मैं एक अच्छा तालिब इल्म हूं, अगर मैं अच्छा स्टूडेंट हूं स्पिरिचुअली, तो उसमें से मैं कुछ ना कुछ अपने लिए निकालूंगा जो मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस बनेगा। हम सभी को मालूम है कि याकूब और ईसाऊ ये दो भाई हैं और सारा और इसहाक जो है इनमें से दोनों हैं, और दोनों जो हैं इससे पेशतर के पैदा होते। याकूब की बाबत लिखा है कि याकूब ने ईसाऊ के पांव की एड़ी को पकड़ रखा था। इससे पहले कि ईसाऊ was about to be born, क्या किया याकूब ने इससे पहले कि पैदा होता, क्योंकि ये दोनों ट्विंस थे, और उसने उसकी एड़ी को पकड़ रखा था। अब लम्हों का फर्क है, घड़ियों का फर्क है, मगर क्योंकि ईसाऊ जो है वो पहले डिलीवर हुआ है इसलिए ईसाऊ पे लौटा है। मगर याकूब की कोशिश ये है कि वो उसकी एड़ी को पकड़े और उसे रोके ताकि वो पहले पैदा हो। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये कैसी जंग है जो मां के बतन से शुरू हुई है, और ये वो शख्स है जो अभी कह लीजिए न्यूली डेवलप हुआ है और पैदाइश के मुख्तलिफ मराहल से गुजर रहा है और तरतीब और तरबियत और कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ मराहल से गुजर रहा है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उस कह लीजिए छोटे से बच्चे में ये ख्वाहिश मौजूद है। अभी वो दुनिया में आया भी नहीं है, मगर मां के बतन ही से जोर लगा रहा है कि I want to be the first, I want to be the first। मैं पहलौठा होना चाहता हूं, मैं पहला होना चाहता हूं। और ये जंग उस वक्त से शुरू है जब से खुदा ने सारा से प्रॉमिस किया हुआ है, रिबका से प्रॉमिस किया हुआ है कि देख मैं तेरे जो पिलौठा होगा उसे बरकत दूंगा।
छोटा है वो बड़े पर हुक्मरानी करेगा। तो खुदा का वादा पहले से मौजूद है कि छोटा जो है वो बड़े पर हुक्मरानी करेगा, मगर छोटा जो है इससे पहले कि दुनिया में आए वो अपनी बरकत के लिए पहले से कोशिशें कर रहा है, पहले से काविशें कर रहा है, पहले से मेहनत कर रहा है। अब जिस तरह के भी हालात थे, याकूब जो है अपने मां के बदन ही से कोशिश कर रहा है कि वो बरकत पाए, वो पेलौठा के लाए। अगर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिससे और मैं आप शायद कोई समझे कि जान भी ना समझते हो, अगर उसमें इस तरह की कैफियत मौजूद है, इस तरह का एहसास मौजूद है, तो एक 50 साला, 40 साला, 30 साला, 25 साला शख्स में ये खूबी क्यों मौजूद नहीं है कि वो आगे बढ़े, वो आगे जाए और उन बरकतों को समेटे जिनका खुदा ने वादा कर रखा है। ये मेरे और आपके लिए एक चैलेंज है। याकूब का कैरेक्टर जो एक चैलेंज है, चुनौती है मेरे और आपके लिए कि मुझे और आपको स्पिरिचुअल रेल्म में फाइट करने की जरूरत है, अपनी बरकतों के लिए जंग करने की जरूरत है। और ये जंग जो है आपके होश से शुरू होती है। अगर आपका होश जो है वो बेहोश है तो आप कभी जंग नहीं कर सकते, आप कभी फाइट नहीं कर सकते। हालांकि ये वादा इसके साथ है, इसे मैं कहता हूं ये वादे का फर्जंद है बुनियादी तौर पर। अगर इब्राहिम से इसहाक वादे का फर्जंद था, तो उसी तरह इसहाक से याकूब के लिए वादे मौजूद है कि मैं आसमानी मुकामों से इसे बरकत दूंगा और इसी से मेरी नस्ल जो है वो कहलाएगी। मगर फिर भी याकूब बतौर बशर अपने तौर पर, ये मेरे और आपके लिए लेसन है कि बतौर बशर आप अपने एंड पे कोशिशें करें, जितनी कोशिश कर सकते हैं खुदा आपको उसमें ब्लेस करेगा, खुदा उसमें आपको बरकत देगा। अगर मैं कोशिशों का दामन छोड़ दूं तो शायद मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप कहते हैं, हम सुनते हैं कि मजबूत से याकूब जो है वो धोखाबाज है, याकूब धोखाबाज है, याकूब। आप इतने बड़े शख्स को धोखाबाज कह के आप उससे क्या निकालना चाहते हैं? What do you want to learn from his character? इस कदर बड़ा शख्स है जो खुदा से कुश्ती करता है, खुदा को छूता है, उसे उसकी मैनिफेस्टेड फॉर्म में उसे छूता है, उसे हक करता है, उसे दबाता है, उसे दबोचता है। आप उसके कैरेक्टर पर गौर करें कि खुदा की जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है उसके साथ वो फाइट कर रहा है। और मैं और आप आराम से आते हैं, निकलते हैं और कह जाते हैं धोखाबाज है, धोखाबाज। एक ही जो जुमला हमारे लबों पे है, हम सारी की सारी पॉजिटिविटी को, उसके सारे कैरेक्टर को एक ही जुमला से मस्त कर देते हैं। ऑब्वियसली हमें नजर आता है कि किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने धोखा से अपने भाई से बरकत ली है, मगर जिसे मैं और आप हम धोखा महज समझ रहे हैं, ये उस शख्स की कमजोरी है जिसने दाल पर अपने हक को निछावर कर दिया। ये उस शख्स की कमजोरी है जिसने अपनी भूख को अपने पेलौठे होने पर तरजीह दी है। आप अपने पेलौठे होने पे, आप अपनी पोजीशन को अगर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, आप अपने रुतबे को अगर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी आएगा तो बोझ के ले जाएगा। तो मैं और आप यहां पर, मेरे और आपके लिए सबक ये है कि याकूब ने किताब मुकद्दस में लिखा कि जब वो अपने भाई से बरकत लेके, पिलौठे का हक लेकर अपने बाप की हुजूरी में गया और बाप ने उसके ऊपर हाथ रखे और बरकत दे दी। हालांकि इसहाक ये चाहता था कि वो ईसाऊ को बरकत दे। क्यों? क्योंकि वो पिलौठा था। और नेचुरल रेल्म में, फिजिकल वर्ल्ड में ये प्रिंसिपल था कि बाप जिसे बरकत दे देगा उसे बरकत मिलेगी, जिसे वो लानत कर देगा उसे लानत कर मिलेगी। और जो खुदा जिसके साथ, जिसके जरिए से, यानी बड़े बाप के जरिए से जो कुछ भी वो कह रहा होगा उसे वो ब्लेस करेगा। और ये प्रिंसिपल था इस दुनिया में। आज तो शायद कोई अपने बाप की, शायद उसकी उस इख्तियार को अंडरस्टैंड ही ना करता हो कि बाप का, बड़े का इख्तियार
तैयार कितने हैं कि जब वो हाथ रख के दिल से बरकत दे देगा तो बरकत उसे ही ट्रांसफर होगी। खुदा उसी को ब्लेस करता है। और ये प्रिंसिपल है, बिब्लिकल प्रिंसिपल है। और इसी बात को याकूब ने, उसे मालूम था कि जब मेरे बाप ने हाथ रख के कह दिया, हालांकि वो तो इस हाथ जो है वो तो ईसाऊ को बरकत दे रहा होगा, मगर हाथ जिसके ऊपर होगा बरकत उसे मिलेगी। हाथ जिसके ऊपर होगा बरकत उसे मिलेगी। तो याकूब उसके हाथ के नीचे था, बरकत ले गया। जैसे कहते हैं आसमान की बादशाही के लिए जोर होता चला आया, मगर जोरावर उसे छीन लेते हैं। जोरावर, इफ यू आर पावरफुल, if you have a potential, you can grab hold of it, you can take hold of it. आप उसे ले सकते हैं अगर आप पावरफुल हैं, अगर आपको मालूम है कि आप स्ट्रगल करने वाले हैं, आप कोशिश करने वाले हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, तो खुदा कोई दुनिया की चीज जो है वो आपको रोक नहीं सकती, बल्कि खुदा भी आपकी राहों के सारे कांटे उठाता चला जाएगा और आपको ब्लेस करता चला जाएगा। और यही कुछ याकूब के साथ हुआ। खुदा ने इंटरवीन नहीं किया, खुदा ने कोई मुदाखलत नहीं की। खुदा को नजर आ रहा था कि एक जो है वो मेरे उस हक को जो मैंने उसे दुनिया में दिया हुआ पेलौठा बनाकर भेजा हुआ, वो उसे हकीर जान रहा है और दूसरा उसकी कदर कर रहा है। और जो जिस चीज की कदर करता है खुदा उसे वो चीज देता है। और अगर आप हकारत की निगाह से देखेंगे तो याद रखिए आपसे वो कुछ जाता रहेगा जो कुछ खुदा ने आपको दिया हुआ है। Don't despise the power of smallest thing in your life. आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें हैं, even the biggest one, उन्हें कभी डिस्पाइज ना करें, हकारत की निगाह से ना देखें। न जाने किस घड़ी, किस लम्हे, किस मौका पर वो उठा ली जाए और किसी और को मिले। और यही कुछ हुआ उसके साथ, ईसाऊ के साथ यही हुआ। वो ले गया, बरकत ले गया, भागा। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसकी मां ने उससे कहा, बेटा ये काम जो तूने कर लिया है ना, अब इसके consequences you have to face. Why? Because Esau is going to be mad at you. और किताब मुकद्दस कहती है कि वो नाला हुआ, नाराज हुआ, वो अपने भाई को मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि इसे मालूम था कि वो सारी की सारी बरकत जो है, जमीनी बरकत की बात कर रहा हूं, वो सारी की सारी याकूब ले गया। और किताब मुकद्दस में लिखा कि मां ने उसे कहा कि बेटा अब निकल यहां से, अब इधर से निकल, इस जगह को छोड़ दे और अपने मामू के पास चला जा। मामू के पास गया, छोटी उम्र मगर ख्वाहिश बड़ी, काम बड़े बड़े, मकासद बड़े बड़े, छोटी उम्र, कच्ची उम्र, काम बड़े, मकासद बड़े बड़े, एजेंडा लाइफ का बड़ा बड़ा। और खुदा ने उसे उसकी उसी नेचर के मुताबिक ब्लेस करना शुरू किया। और किताब मुकद्दस में लिखा कि जब वो अपने मामू लाबन के पास गया तो उसके घर के लिए बरकत का बाइस बना। क्यों? क्योंकि वो बरकत तो वहीं से लेकर निकला हुआ था, अपने बाप के हाथ के नीचे से। और वो जिस जगह जाता वहां बरकत होता चला जाता, वहां बरकत होता चला जाता। मगर उसकी उस बरकत में जो कुछ भी वो पा रहा था, सुस्ती, काहली हरगिज नहीं थी। मेहनत, स्ट्रगल, जद्दोजहद, और खुदा उसकी जोहद को ब्लेस करता चला गया, उसकी काविशों को ब्लेस करता चला गया। और अगर मैं और आप बरकतों के वादों के साथ साथ जोहद और काविश का दामन नहीं पकड़ेंगे तो कभी ब्लेस नहीं किए जाएंगे। लेट्स मूव ऑन। गया, वहां पर रहा और तकरीबन 20 साल वो अपने मामू के पास रहा। और उसके उन सालों को आप थोड़ा सा गौर से देखें। पहले 7 साल राखल के लिए, फिर अगले 10 साल राखल के लिए, यानी 14 साल ये शख्स एक खातून के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है, उसकी मोहब्बत में अपनी लाइफ डेडिकेट कर रहा है। अगर ये शख्स जमीन पर लोगों से इतनी मोहब्बत कर रहा है तो आसमानी खुदा से कितनी मोहब्बत कर रहा है। किताबें मुकद्दस बड़ी क्लियर है। अगर जमीन पर तो अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकता तो खुदा जिसे तूने नहीं देखा तो उसे कैसे मोहब्बत कर सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता आप याकूब के कैरेक्टर को अनपैक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि
साथ इसकी निस्बत कैसी थी, how spiritually he was strong, how powerful he was. और 7 साल राखिल के लिए, 7 साल के बाद जिसे हम कहते हैं धोखा देने वाले को धोखा दिया गया, उसके साथ भी धोखा हो गया। शादी हुई, पता चला ये राखिल नहीं है, लिया है। उसने कहा कि मामू ये तूने मेरे साथ क्या किया, तूने तो कहा था कि राखिल को मेरे से ब्याएगा। उसने कहा कि अगर राखिल चाहता है तो 7 साल और उसके लिए मेहनत कर। उसने कहा राखिल तेरे लिए तो 7 और साल लगा दूंगा। उसकी मोहब्बत जो थी उसमें सैक्रिफाइसेस मौजूद है, कुर्बानियां मौजूद है। तीनों रात उसने एक किया अपने मामू के लिए, और अल्टीमेटली उसका टारगेट था कि वो राखिल को अचीव करे। एनी हाउ 14 साल उसने राखिल के लिए, और किताब मुकद्दस कहती है कि अगले 6 साल उसने अपने मामू की भेड़ बकरियों के लिए गुजारे, और 20 साल वो शख्स उस जगह पर रहा। ना सिर्फ अपने मामू के लिए बरकत का बाइस बना, किताब मुकद्दस कहती है कि याकूब बढ़ता चला गया, उसका गल्ला बढ़ता चला गया, और वो ताकतवर होता चला गया। और फिर जब 20 वर्ष हो गए तो खुदा ने कहा कि याकूब अपने मामू को छोड़ और मुल्क केनान को अपने बाप और अपनी मां और अपने भाई के पास जा। उसने फैसला किया कि खुदा की आवाज आई है, I'm not going to reject it, I'm not going to ignore it। जब खुदा आपको आवाज देता है तो कितने ताबेदार हैं। आप देखें ये शख्स जिसे धोखाबाज कहा जा रहा है कितना ओबीडिएंट है टू द कॉल ऑफ गॉड। खुदा ने कहा छोड़ इसे, उसने कहा I'm going to do it। उसने 20 साल के बाद अपने मामू को, अपने मामू के सारे खानदान को छोड़ा और ईसाऊ की तरफ निकल खड़ा हुआ। और जैसे वो ईसाऊ की तरफ जा रहा था, किताब मुकद्दस के मुताबिक रास्ता में उसे खौफ ने आ लिया, डर ने आ लिया, और डर ये था ईसाऊ तो अब मुझे मार देगा। जैसे मैं जाऊंगा, खुदा की बात एक तरफ है, उसने मुझे कहा निकल, मैं निकल पड़ा, बट आई नो कि ईसाऊ इज गोइंग टू किल मी, क्योंकि उसने मैंने धोखा दिया हुआ है, और वो मैड है, और वो मुझसे बदला लेना चाहता है। आप सोचिए इसके साथ सैकड़ों जो है वो लाइफ स्टॉक, भेड़ बकरियां, ऊंट, भैंसे, गायें और बहुत कुछ है। उसके मुलाजिम है, गुलाम है उसके साथ। वो लेकर एक कबीले की शक्ल में केनान की तरफ जा रहा है, और रास्ता में ठहर गया और उसने अपने लोगों से कहा कि देखो मुझे मालूम है कि ईसाऊ ने मुझे मार देना है, अब ऐसा करो हम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएं, ऐसा ना हो कि वो सबको एक ही बार मार दे। यानी फिर भी वो स्टिल प्लानिंग, उसे मालूम है कि खुदा उसके साथ है, वो खुदा की आवाज पे लब्बैक कह के निकला है, मगर फिर भी वो अपने शऊर को, अपने होश को काम करने देता है और कहता है अपने सब मुलाजिमों से कि तकसीम हो जाओ, एक ग्रुप इस तरफ चला जाए, एक ग्रुप इस तरफ चला जाए, और देखते हैं कि ईसाऊ क्या करता है, भाई क्या करता है। और फिर किताब मुकद्दस में लिखा रात का वक्त हुआ और वो अकेला निकल पड़ा। उसने दोनों ग्रुप्स को छोड़ दिया, अकेला निकल पड़ा, और एक मुकाम पर उसकी आंख लगी, और किताब मुकद्दस कहती है कि एक शख्स आया और उसके साथ कुश्ती करने लगा। एक शख्स आया और उसके साथ कुश्ती करने लगा, और बड़ा क्लियर है किताब मुकद्दस में कि वो खुदा का फरिश्ता। और फिर आगे लिखा है कि खुदा उससे कुश्ती करता रहा। कौन कुश्ती करता रहा? खुदा उससे कुश्ती करता रहा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये डिसीजन याकूब का नहीं था कि वो खुदा से कुश्ती करे। ये डिसीजन याकूब का नहीं था कि वो आवाज देकर कह गया खुदा ऐ हवा पाक तू नीचे आ और मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूं, मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूं। मगर खुदा जिसने उसे हुक्म दिया था कि अपने मामू को, खानदान को छोड़ और केनान की तरफ दोबारा जा, वो अपने वादों में सच्चा है। उसे मालूम है कि याकूब घबराया हुआ है, उसे मालूम है कि याकूब खौफजदा है, उसे मालूम है कि याकूब के जो असहाब है वो खता हो चुके हैं, औसान खता हो चुके हैं। अब मुझे इसके साथ इसकी मदद करनी है। अब ये टोटली हम्बली अपने आप को मेरे हुजूर में रख चुका है, अब मुझे इसे ब्लेस करना पड़ेगा। आप जब मुकम्मल तौर पर ऐसे हालात का शिकार हो तो आप वहां से क्या लेकर निकलेंगे? याकूब ऐसे हालात का शिकार था, उसे नजर आ रहा है कि सामने मौत है, और वो घबराया हुआ अकेला रात की तारीकी में
मुझे बचा ले, खुदा मुझे बचा ले, खुदा मुझे बचा ले, मेरे भाई से मुझे बचा ले, तूने मुझे शेरों से, रीछों से, भेड़ियों से, सबसे बचाया हुआ है, मगर मुझे मेरे भाई से बचा। और किताब मुकद्दस बड़ी क्लियर है कि एक शख्स आया उससे कुश्ती करने। अब सुनिए कुश्ती क्या थी। और वो फटने के वक्त एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा, और जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, किस पर गालिब नहीं होता? याकूब पर गालिब नहीं होता। इसका मतलब जो शख्स आया है वो गालिब होना चाहता है, वो फतह पाना चाहता है, वो जिससे फाइट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और वो याकूब है। एक तरफ खुदा जो ह्यूमन फॉर्म में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, वो कुश्ती कर रहा है याकूब से। आप एनकाउंटर देखें डिविनिटी का और ह्यूमैनिटी का, किस तरह से डिविनिटी जो है ह्यूमैनिटी के साथ एनकाउंटर करती है, और जहां डिविनिटी का और ह्यूमैनिटी का, जहां पर अलूहियत का, जहां पर अब्दियत का और बशरियत का टकराव होता है, वहां से बड़े बड़े मौजूद होते हैं। जब आप एनकाउंटर करते हैं अलूहियत के साथ, डिविनिटी के साथ, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, तो याद रखिए वहां उस टकराव से बहुत कुछ निकलता है, बरकतें निकलती हैं। और सुनिए किताब मुकद्दस कहती है कि वो शख्स जो आया था वो खुदा था, और वो लड़ता रहा, और जब उसने देखा कि जान ही नहीं छाड़ता पाया, ये तो हार ही नहीं मान रहा, यानी खुदा ने अपनी ह्यूमन फॉर्म में उसने देखा कि ये तो बड़ा लड़ाका है, ये तो चिमट के मुझे आ रहा है, ये तो छोड़ ही नहीं रहा, मैं तो शायद 5 मिनट के लिए फाइट करने आया था, मगर ये तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा, ये तो गालिब आ रहा। और किताब मुकद्दस में लिखा खुदा ने देखा कि जब वो उस पर गालिब ना आ पाया, तो उसने कहा कि भाई मुझे जाने दे, मेहरबानी कर, बड़ी हो गई, मैंने चेक कर लिया। खुदा अपनी उस ह्यूमन फॉर्म में जब उससे फाइट कर रहा था, तो वो याकूब की परसिवरेंस को देख रहा था, उसके इस्तेहकाम को देख रहा था, उसके पेशेंस को यानी सब्र को देख रहा था, उसकी उस प्रेइंग एटीट्यूड को देख रहा था। फिर बताता हूं, खुदा उसके परसिवरेंस को चेक कर रहा था कि इस्तेहकाम इसमें कितना है, हाउ लॉन्ग ही कैन गो, कितनी देर तक जा सकता है। अब याकूब मुसीबत में है, याकूब दुख में है, याकूब खौफ की हालत में है, याकूब घबराया हुआ है। मैं और आप अपने आप को रिलेट करें, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम घबराए होते हैं, हम खौफज़दा होते हैं, हमारे औसान खता हो चुके होते हैं, और हमें और कुछ सुझाई नहीं देता, मगर उस हालात में अगर खुदा आपके बीच में आ जाए, तो would you be able to discern कि you are fighting with somebody who has come from above? क्या आप सोच सकते हैं कि किसके साथ फाइट कर रहे हैं आप इस स्पिरिचुअल रैल्म में? सुनिएगा, और जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ। मुझे मालूम है कि मैं बाजू पकड़ने का शौकीन रहा हूं, कहते ना अपने आप बांह फड़ना, तो मुझे मालूम अगर कोई ताकतवर मुझसे फाइट करने के लिए या बाजू पकड़ने के लिए आता था, तो मुझे मालूम था अब इसका क्या करना है, मुझे मालूम है इस पर मैं गालिब नहीं आ सकता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ताकतवर है, मैं कमजोर हूं, मैं इसकी बाजू छुड़ा नहीं सकता, या मैं इस पर गालिब नहीं आ सकता, मुझे मालूम होता था। मगर मैंने फिर ट्रिक इस्तेमाल करना कि उसके अंगूठे को झटका लगाना कि इसे पेन होगी तो बाजू छूट जाएगा। यानी sometimes we use our tricks, और खुदा ने देखा कि ये जो जेन्युइन फाइट है ना, इसमें तो याकूब तो जान ही नहीं छोड़ रहा, अब मैं इसे क्या करूं, इसकी हिप को पकड़ूं और ये जो सॉकेट है इसे निकाल देता हूं। और खुदा ने उसे उसकी सॉकेट को, जो इसकी हिप सॉकेट थी, इसे डिस्प्लेस किया। इन्होंने कहा कि होने जो पीड़ होएगी ना, फिर छटेगा, फिर छोड़ेगा, जब इसे पीड़ा होएगी, जब इसे दर्द होगी तो फिर छोड़ेगा। और खुदा ने लिटरली ये किया। खुदा बाज़ औक़ात मुझे और आपको दर्दें देता है, खुदा बाज़ औक़ात मुझे और आपको ऐसे इम्तहानात में से गुजारता है, पेन देता है, वो खुद इंटेंशनली पेन देता है, और वो चेक करता है कि अब ये क्या करेगा,
क्यों? क्योंकि पेन जो है आप नहीं जानते कि वो पेन जो है बेसिकली आहिस्ता 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 आपके लिए ब्लेसिंग्स का बाइस बने। वो पेन जो है जिसे पेन समझ रहे हैं वो ब्लेसिंग्स का बाइस बन जाए। अब याकूब की फिर हालत देखे, जब उसने देखा कि वो इस पर गालिब नहीं आता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पूंछ फट चुकी। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा तो मैं पीड़ भी करा देती हूँ पर छोड़ना नहीं है मैंने। I'm not going to let you go. I'm not going to let you go. जब तक as long as you're going to bless me, I'm not going to let you go. हाँ दर्द है इसे सह लूंगा, तकलीफ है इसे सह लूंगा, मैं तो पहले ही दर्द से गुजर रहा हूँ, मैं तो पहले ही खौफ का शिकार हूँ, मगर इस काम को इस मौका को जाने नहीं दूंगा। हमारा मजमून है getting the best out of it. इसमें से बेहतरीन को निकालिए। आपके हालात खराब हैं, आप शिकार हैं आजमाइशों का, मुसीबतों का, दुखों का, बीमारियों का। अगर आप उसमें से बेहतरीन की तलाश नहीं कर सकते तो आपकी सिकनेस, आपकी बीमारी, आपकी तंदही, आपका कंगलापन, आपकी फेलियर्स, कोई फायदा नहीं उनका होगा। और याकूब की आगे मैं आपको 4-5 खूबियां ऐसी बताता हूं जो याकूब में मौजूद थी। उसने किस तरह इस सारी सिचुएशन को अपने लिए बरकत का बाइस बनाया। कैसे उसने अपने लिए बरकत का बाइस बनाया? उसने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब इसका मतलब वो जाना चाहता था, मगर पीछे जैसे मैंने कहा कि खुदा ने उसकी परसवेरेंस को, उसके इस्तेहकाम को, उसके सब्र को और उसके दवाइया एटीट्यूड को जान लिया है कि ये कुछ ना कुछ लेना चाहता है मुझसे, इसीलिए मुझसे फाइट करता चला जा रहा है। इसीलिए जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो जब खुदा की हुजूरी जो वो होती मौजूद होती है तो हम में से कितने हैं जो उसका तजुर्बा करके उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स मेरे बड़े भाई कहा करते हैं कि कुछ लोग इबादत करना आते हैं तो कुछ इबादत देखना आते हैं। तो अगर मैं इबादत देखने आया हूं आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। अगर इबादत करने आया हूं तो सब कुछ मिलता चला। आमीन। अगर इबादत करने आया हूं, करना चाहता हूं तो बिलीव कीजिए खुदा बहुत कुछ देना जाएगा। अब यही नहीं है कि I'm not just talking about the physical things in this world. I'm talking about the spiritual things. Those come from above, जो आसमान से आती है। और ये कुश्ती मेरी और आपकी, हम जिंदगी में कई कुश्तियां लड़ रहे हैं। हालात से कुश्ती लड़ रहे हैं, काम कारोबार से कुश्ती लड़ रहे हैं, रिजेक्शन से कुश्ती लड़ रहे हैं, एंग्जाइटी से कुश्ती लड़ रहे हैं, डिप्रेशन से कुश्ती लड़ रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने मामलात के साथ, कई एक चीजों से मैं और आप कुश्ती लड़ रहे हैं। मगर इन तमाम तर कुश्तियों में जो मैं और आप लड़ रहे हैं, क्या मेरा और आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है? क्या उनमें से मैं कुछ निकालना चाहता हूं अपने लिए जो बरकत बने, या मैं अपने लिए लानत खरीदना चाहता हूं? ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। क्या मैं उसमें से बरकत लेकर निकलूंगा? अगर बरकत लेना चाहते हैं तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आपको मालूम पड़ रहा है कि खुदा मौजूद है और खुदा के साथ आप दुआ में फाइट कर रहे हैं कि खुदा मुझे दे, खुदा मुझे दे, खुदा मुझे दे। और किताब मुकद्दस कहती है कि उस बेइंसाफ काजी के नाक में दम कर दिया। किसने? बेवा ने। किस काजी के नाक में दम किया गया? अनजस्ट जज, बेइंसाफ काजी के नाक में दम कर दिया गया कि मेरा इंसाफ कर, 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 मेरा इंसाफ कर। और वो इंसाफ करना नहीं चाहता था, बट बिकॉज ऑफ हर परसेवरेंस, हर पेशेंस और उसका कंसिस्टेंट एटीट्यूड जो है वो उस बेइंसाफ काजी को कायल कर देता है। तो मेरा और आपका खुदा तो बेइंसाफ है ही नहीं है, वो तो बेइंसाफ है ही नहीं है। वो क्यों नहीं मुझे और आपको ब्लेस करेगा? अगर आप कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट है, परसेवरेंस है आपके पास, पेशेंस है आपके पास और प्रेइंग पर्सन है आप,
तो याद रखिए फिर खुदा को आप जाने नहीं देंगे। आप कहेंगे ना ना ना, I'm not going to let you go। अब आया है, जाने नहीं दूंगा। अब कुछ दे के जा। अब खादमों से या हालात से तंग आ सकते हैं, मगर खुदा से कभी तंग ना है। खुदा मुझे और आपको देना चाहता। खुदा ने लिटरली उसका मकसद ये था कि वो याकूब को ब्लेस करके जाए। अब याकूब की 5 खूबियां। नंबर 1, याकूब स्पिरिचुअली वेरी सेंसिटिव, रूहानी तौर पर बहुत हसास था। उसकी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी का सिस्टर जी मजहर यह है कि उसने देख लिया कि वो कुश्ती कर किससे रहा है। आप बाजुकात किससे लड़ रहे होते हैं, डिफाइन इट, किससे लड़ रहे होते हैं, एंड इट्स गोइंग टू डिटरमिन द आउटकम ऑफ योर ब्लेसिंग्स। अगर आप जमीन पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं तो नथिंग इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। अगर आप आसमान के साथ फाइट करेंगे ना तो यकीन जाने वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा। हमें आप अपने बाप से अकड़ के मांगते हैं, है ना? जितने बाप है सबको पता है कि बच्चे कितना अकड़ के मांगते हैं। देते हो या नहीं देते, है ना? ऐसे भी कहते देते हो या नहीं देते। बाप है, क्यों? आपको मालूम है कि इसने देना ही देना है। तो भाई याकूब को कैसे ना मिलता। अब अपने बच्चों को बात हम तकलीफ भी देते हैं, मगर हमारा तकलीफ देने का मकसद होता है कि इन्हें बेहतर किया जाए, इन्हें और अच्छा कुछ दिया जाए। और जब उसकी रान को छुआ, उसे पेन मिली, अगर वो पेन पर ही कहता ना ना बस I don't need anything else, that's it, I'm going to let you go, I'm going to let you go। हम होता बालूकार कहते हैं बस I don't need anything, but believe me जेड़ा रोंदा होया भी अपना मकसद मांगदा रहंदा ना खुदा नहीं देंदा। बालूकार बच्चे को मार रहे होते हैं, खबरदार ये मांगा तो, मगर फिर भी मांग रहा होता है। मार खाते हुए भी मांगता जाएगा, तो इसका मतलब है जो मार रहा है ना बाप, उसने कहना यार बड़ा शर्मिंदा थिंदा है, इसे कुछ देना ही पड़ेगा। तो फिर आसमान का खुदा जो है वो मुझे और आपको क्यों नहीं देगा? वो देगा, मगर वो देखता ये है कि इसका परसुवेरेंस कैसी है, इसका रवैया कैसा है, इस्तेहकाम कैसा है, क्या ये मुझ पर टोटल डिपेंडेंस है, क्या इसी पेन पर इन्हिसार कर गया, खौफजदा हो गया। छोटी छोटी दर्दों से, तकलीफों से खौफजदा ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी दर्दें, छोटी छोटी तकलीफें बड़े बड़े मौजज़ात को पैदा करती हैं, बड़े बड़ी शुक्रगुजारियां इससे जन्म लेती हैं। आप अपने हालात से घबरा गए हैं, आप बीमारी से घबरा गए हैं, मगर देखिए उस बीमारी से कितनी बड़ी शिफा पैदा हुई है। आमीन। देखिए कितनी बड़ी गवाही खुदा पैदा करता है। और ये अगर आप पेन को शुक्रगुजारी के साथ बर्दाश्त करके कहेंगे खुदा दर्द देती हूँ, मगर दर्द नाल और भी कुछ दे के जा, हमें ये भी दे के जा। हाँ मैंने पीड़ा काट ली है, मैंने तकलीफ सह ली है, अब सहता रहूंगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे इसमें ब्लेस कर बरकत दे। तो याकूब जो है वो स्पिरिचुअली सेंसिटिव है। आप सेंस करें कि आप किससे फाइट कर रहे हैं। अगर तो खुदा से कर रहे हैं तो वो आपको दर्द दे के भी आपको बरकत देकर जाएगा। जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो एटमॉस्फेयर को सेंस करें कि खुदा की हुजूरी मौजूद है, और आप अगर उससे बरकत पाना चाहते हैं तो आप उसे रिसीव करें। और मैं हमेशा कहता हूं जब खुदा बाज़ ये पीक्स होती हैं स्पिरिचुअल, जब आप देख रहे हैं कि स्पिरिचुअली कुछ पीक पे चल रहा है, तो उस वक्त दरवाजा नॉक करना शुरू कर दे खुदा का, उसके दिल पर दस्तक देना शुरू कर दे। खुदावंद ये मौका है, उसी वक्त मांगना शुरू करें। ना I'm not going to let you go, I'm not going to let you go। मैं इसमें से कुछ निकाल के रहूंगा, वो बेहतर नहीं मुझे चाहिए, अच्छा नहीं मुझे चाहिए, मुझे बेहतरीन चाहिए। और वो बेहतरीन देखिए, इसने कहा ये नहीं कहा कि बस दर्द तो शिफा दे दे, बड़ी हो जाएगी घर, है ना? उसने ये नहीं कहा कि ये ठीक ही कर दे बस, that's it। उसने दर्द की शिफा नहीं मांगी, उन्हें अपनी लाइफ की सारी दर्दां की शिफा मांगी। उन्हें कहा कि मुझे बरकत देकर जा। उसे मालूम था जो बरकत ये देकर जाएगा ना, उसकी सारी दर्दों पर गालिब आ जाएगी। आपकी सारी दर्दों पर
खुदा की बरकत गालिब आती है। आमीन। आइए बोले हालेलुया। बी स्पिरिचुअली सेंसिटिव। आप स्पिरिचुअली हसास हो, खुदा की प्रेजेंस को देखें। जब आपको फील हो कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, ट्राई टू नॉक एट द डोर। खुदा को नॉक करें, कह के देकर जाओ। दूसरी बात, अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो महज रूहानी तजर्बे का से हाथ ना उठाएं, बल्कि इसे एक फायदा जाने। फिर बोलता हूं, महज रूहानी तजर्बे का हाथ ना उठाएं, बल्कि इसे एक मौका जाने अपने लिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि बाज़ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। जिस तरह याकूब के इर्द गिर्द एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था। वो खुदा की हजूरी, खुदा से फाइट कर रहा था। इसका मतलब पूरे आसमान से, पूरी कायनात से उसकी फाइट थी, और उसने सेंस कर लिया कि अब यहां पर कोई है। स्पिरिचुअली सेंसिटिव था, और उसने उस तजर्बे को अपने लिए काफी नहीं जाना कि इट्स इनफ फॉर मी, आई एम फाइटिंग विद गॉड, इट्स इनफ। बाज़ हमारा भी होता है, हम चर्च खत्म होता है, बड़ा मजा है। क्या लेकर कुछ गए हैं या मजा लेकर गए हैं? है ना? बाज़ सिर्फ मजा ही लेकर जाते हैं, और वो मजा जो है, अगर आपके लिए उसे अपॉर्चुनिटी नहीं आपने समझा, और आपने उसमें से कुछ लिया नहीं है अपनी बीमारियों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने काम कारोबार के लिए, तो याद रखिए वो तजर्बा रह जाएगा, मगर उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए? Do not just enjoy the experience, but try to understand कि it's an opportunity, कि ये एक आपके लिए मौका है, ये मौका है, और ये मौके बार बार नहीं आते। खुदा ने याकूब से हर रोज कुश्ती नहीं की थी, एक ही बार की। तो बिल्कुल इसी तरह से मेरी और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि मुझे और आपको उसे एंजॉय नहीं करना, बल्कि उसमें से कुछ निकालना है, और वो बेहतरीन निकालना है। दर्द पर निगाह ना करें, निगाह करें कि जो आया ये दर्दों से बढ़कर है सब कुछ इसके पास, और वो देने की कुदरत रखता है। तो अपने तजर्बा को महज एंजॉय ना करें, बल्कि उससे एक अपॉर्चुनिटी समझें। आमीन जी। दूसरी बात, तीसरी बात, सब्र और इस्तेहकाम का मुजाहरा करें। सब्र और इस्तेहकाम, और देखा कि वो सारी रात लड़ता रहा, घंटे की दुआ के बाद थकना शुरू हो जाता है, थक जाते हैं, अक जाते हैं, और आपको मालूम है पता नहीं कौन सी मूवमेंट जो है इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग, किस मूवमेंट पर ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, किस मूवमेंट पे दरिया जो है वो बरकतों का खुलने वाला है, कब जो फ्लड गेट्स हेवनली खुलने वाले हैं, हु नोज इट। अगर ये याकूब इन द मिडल ऑफ द नाइट जब उसकी रान को पकड़ा, उसी वक्त जो है वो गिव अप कर देता, बस दैट्स इट। जब उसी वक्त डर से उस जगह को छोड़ के भाग जाता, दैट्स इट। सब्र, खुदा अपनी हजूरी में रहने वालों से सब्र चाहता है कि सब्र के साथ मेरा इंतजार करो। मैं सब्र देना ले आस रख के यहोवा दे करदा सा इंतजारी। तो सब्र के साथ इंतजार कीजिए, वो सब्र करने वालों को पसंद करता है, और पेशेंस है जिसके पास, उसके पास सब कुछ है। आमीन। और इसने पेशेंस का मुजाहरा किया, और इसने परसुवेरेंस का मुकम्मल फाइट करता रहे। जो पत्थर पे पानी पड़े मुस्तकिल, जो पत्थर पे पानी पड़े मुस्तकिल, बिला शुबा खिस जाए पत्थर किसे। अगर आप मुसलसल फाइट करेंगे, तो यकीन जानिए आप पत्थरों में भी सुराख कर सकते हैं, पहाड़ों को मैदान कर सकते हैं, मगर मुसलसल परसुवेरेंस के साथ। और याकूब के पास परसुवेरेंस भी थी, और पेशेंस भी था, सब्र भी था, और इस्तेहकाम भी था। मेरे और आज के मसीह के पास ना तो सब्र है और ना ही इस्तेहकाम है। हम बेसब्रे लोग हैं। आज यीशु मसीह ने हुजूरी चाहने थे कहना कल सारी दुनिया बदल जाए। खुदा आपको हमेशा के लिए देना चाहता है, और वो मैच्योर करके देना चाहता है। खुदा बालिग के हाथ में चीजें थमाता है, बच्चों के हाथ में नहीं थमाता। जैसे मैं अपने बच्चे को अपनी चेकबुक नहीं दूंगा, इसी तरह खुदा भी अपने
छोटे बच्चों को जब तक वो बुलूगत की तरफ नहीं जाते नहीं देता। खुदा ने इससे, सुनिएगा दोबारा ध्यान से, ये अपने खानदान को छोड़कर निकला है, 20 साल मामू के पास रहा है, मगर खुदा ने इसे वो कुछ नहीं दिया जो बाद में उसे दिया। ये जो खुदा ने उसे ब्लैंक चेक दिया ना बरकतों का, ये उसके पेशेंस और परसेवरेंस को देख के दिया, उससे पहले नहीं था दिया। आप पूरी बाइबल खोल के देख लें, खुदा ने उसे ऐसे बरकत नहीं दी जैसे उसे अब दी है। और अगर आप बरकत चाहते हैं तो शो योर परसेवरेंस और पेशेंस का मुजाहरा करें, सब्र से इस्तेकाम से चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, थकिए ना, घबराइए ना, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन जी, आइए बोले हालेलुया। चौथी बात, किसी रूहानी तजुर्बा से मुतमिन होना काफी नहीं है, बल्कि उस तजुर्बा को अपनी बरकत का जरिया बना ले। आपका स्पिरिचुअल एनकाउंटर जो है किसी भी चीज में, और वो जो एक्सपीरियंस है, उसे डोंट बी कंटेंट विद इट, डोंट बी कंटेंट विद इट। क्या करें? उसे मेक ए सोर्स ऑफ योर ब्लेसिंग्स, उसे अपनी रूहानी बरकतों का जरिया बनाए। अब याकूब ने उस तजुर्बे को एक जरिया बनाया बरकतों का, उसने उसमें से बेहतरीन निकालना चाहा। उसने अच्छे पर इक्तफा नहीं किया, उसने बेहतर पर इक्तफा नहीं किया, उसने उस एक्सपीरियंस के ब्रिज को जो खुदा के साथ जुड़ चुका था, उससे उसने बेहतरीन को निकाला है, उसने उसे जरिया बनाया है। अपनी कनेक्टिविटी को उसने अपने लिए बरकतों का बाइस बना लिया। आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को, अगर आपके पास स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन्हें इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए बरकतों का जरिया बनाइए। आमीन, आइए बोले हालेलुया। पांचवी बात और आखिरी बात, जब आप इस तरह के हालात से दो चार, और क्योंकि ऑब्वियसली खुदा उसे ब्लेस करना चाहता था, मगर वो देखना चाहता था कि ये मांगता है या नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इसने मुंह मांगे कि भाई दे के जा, I'm not going to let you lose, जाने नहीं दूंगा। तो कैसे मुमकिन है कि जो बादशाहों का बादशाह, कायनात का खालिक और मालिक, उससे कोई मांगे और इतने भरोसे और एतकाद के साथ मांगे और वो उसे जाने दे? इतने भरोसे ना जवेद भाई मुझे ये 500 देना तो ना दे देना, है ना? देखिए, अगर आप एतकाद से कहेंगे, अगर भरोसे से कहेंगे, तो नो वन इज गोइंग टू डिनाई यू, भाਵੇਂ कर्जा चुक के जान दे दे। तो जिसके पास दुनिया में सब कुछ है, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे कहेगा कि ना 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 ना, I'm not gonna give you। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। पांचवी बात, आखिरी बात यह है कि आप ईमान से लेकर कुछ आइए उस तजुर्बा से जिसका आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया, जिस बात का, उससे ईमान से लेकर आइए और घबराए ना, डरे ना, खौफ ना खाए। याकूब की खूबी किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो ऐसे ऐसे चलता हुआ आया, जब उसे बरकत दे दी, खुदा ने कहा कि जा मैं तुझे बरकत देता, तो ही वाज लिंपिंग। उसने फिर नहीं कहा कि अच्छा बरकत देती यार, पीठ से कट जा, है ना? उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि क्योंकि खुदा चाहता है कि आप इस तजुर्बे को भी एंजॉय करें, जहां आपको सब कुछ मिल रहा है। अगर लाइफ की हल्की हल्की पीड़ा आ भी जाए ना खुदा बंदे लोग, तो खुदा पर लान तान ना करें, खुदा भरोसे के साथ उस पीड़ा को भी, उस दर्द को भी ईमान के साथ लेकर निकले कि जिसने ये दर्द दिया है ना, उसने तो वो कुछ दे दिया है जो इन तमाम दर्दों पर गालिब आ जाए। और वो उस खौफ को वहीं पर छोड़कर आया उसी कुश्ती में। वो खौफ जिससे उसकी जंग चल रही थी, खौफ हार चुका था वहां पर। अब उसे अपने भाई का खौफ नहीं, अगरचे अब तो वो इस काबिल भी नहीं है कि अपने भाई से फाइट कर सके। ही इज लिंपिंग, लंगड़ा कर चल रहा है, अपने भाई से फाइट कैसे करेगा? मगर उसे डर नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि जिसने बरकत दी है ना, उसने मुझे जिंदगी के लिए बरकत दी है। ये नहीं है कि वो मुझे मरवाना चाहता है, इतना स्मार्ट है वो, उसे मालूम है कि अगर उसने मुझे बरकत दी है ना, तो वो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं और मुझसे कौमें पैदा हो। अब ये दर्द
या भाई सौ का खौफ कैन डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो ईमान से सब कुछ लेकर निकला है। उस मैदान जंग से, उस कुश्ती के मैदान से ईमान से सब कुछ समेट कर आया। आप जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो और ईमान से यहाँ से समेट कर जाएं। अगर आप अपनी फिजिकल आंखों से नहीं भी देख सकते तो आप देखें कि जिसने आपके लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है ना, उसने खुद कहा कि वो चीजें जो आंखों ने नहीं देखी, जिनका कानों ने नहीं सुना, ना आंखों ने देखा, ना उनका ख्याल दिल में आया, वो सब चीजें किनके लिए पैदा की गई? खुदा के लोगों के लिए। तो अगर देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका ख्याल भी नहीं है, अगर ये सब कुछ है तो इसका मतलब है फिर आपको क्या ब्लाइंडली उन्हें समेट के जाना पड़ेगा। आंखें बंद करके कहें ये भी मेरा है, 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 ये भी मेरा। खुदा तू मुझे ब्लेस करेगा, आमीन। उससे लेकर जाए, उसे जाने ना दे। आप आते हैं 2 घंटे वेस्ट ना करें खुदा की दूरी में। डोंट वेस्ट योर टाइम, एंजॉय ना करें महज, बल्कि कुछ लेकर जाए। आमीन। आइए सर को झुकाइए, आइए अपने सर को झुकाइए। If you want to get the best out of it, you have to be spiritually very strong, very sensitive. आप spiritually sensitive हो, खुदा आपको देगा। आप अपने तजर्बे से महज हाथ ना उठाएं, इसे अपॉर्चुनिटी समझें। आप अपने तजर्बा को अपने बरकतों का जरिया बना लीजिए। आप परसवेरेंस और पेशेंस का मुजाहरा कीजिए। जब भी खुदा आपको बरकत देना शुरू करे, जब भी आपके लिए दरवाजे खुल जाएं। याकूब ने इन तमाम तर चीजों को अलाउ किया, उसका डर जाता रहा, उसका खौफ जाता रहा, उसने अपनी बीमारी पर, उसने अपनी दर्द पर नजर नहीं दौड़ाई, उसने अपनी बरकतों पर नजर रखी। आइए अपनी बरकतों पर नजर रखिए और कहिए खुदावन, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, तू मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। सुलेमान से खुदा ने कहा कि मांग, क्या मांगता है? उसने कहा मुझे हिकमत दे, उसे हिकमत दे दी गई। याकूब ने कहा मुझे बरकत दे, खुदा ने उसे जमीनी और आसमानी बरकत से अता कर दिया। अंधा बर्तन वही नाश्ता पर मौजूद था और यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि ये कि मैं पीना हो जाऊं। उसे आंखें मिल गई। जो जन्म का अंधा था उसने कहा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, उस पर रहम कर दिया गया। उस बेवा खातून ने कहा कि मालिक, ए रब्बी, कुत्ते भी उसी मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते हैं जो उसके मालिक के मेज से गिरते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। सूबेदार ने कहा कि तू महज कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। उसने कहा जा तेरे ईमान के मुताबिक हुआ। अगर आज आपका ईमान है, अगर आज आप समझते हैं कि खुदा यहाँ पर मौजूद है, तो आपको वो बरकत देगा, आपको वो ब्लेस करेगा। आप इत्तेकाद के साथ उसके दरवाजा पर नॉक करना शुरू कीजिए और कहिए खुदा, I do not want to let this moment go, I do not want to let you go without blessing me। खुदा मैं नहीं चाहता कि तू मुझे बरकत दिए बगैर यहाँ से चला जाए। आइए आपके पास वक्त है, अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आपके पास बरकत नहीं है, अगर आप किसी भी तरह की एजुकेशनली प्लस होना चाहते हैं, फाइनेंशियली प्लस होना चाहते हैं,